numerical which we are discussing in the last class. This I told you that you do not have to apply any shifting rule in this, but you have to just there is one closed loop of formed by G2 and S2, and there is a closed loop formed by G1 and H1. You have to just segregate these two summing points as one as here and another at here. So this will be from H1 feedback, and this will be from H3 feedback. Okay, so there are lots of methods to solve this. I think it's a very easy question. You should try this. Let us move on some another question on not on this like this. So we'll see two more solutions today, and I'll give you an assignment after that of 3 or 4 questions. You have to do that and submit them. So the question again, the question for the this block diagram is again to find the transfer function ys by rs using the block diagram algebra. So there are some closed loops and some feedback loops, some feedbacks and some forward paths gains are there. So can anyone suggest that which block or which takeoff point should be moved so that blocks will be in series or will be in closed loop? Anyone? Right, S3 and S2, everyone see it. If we move this takeoff point after this block, then these two blocks will be in series, and after these two blocks will be in the feedback loop with this H4. Okay, so now think of reverse of this also. If we move this here, then these two blocks are in series, but after that these two blocks will not be in closed loop with this because there will be a takeoff point here of S3 and S2. So let's move this takeoff point after the block G4. Let's move this takeoff point after the block G4. So this is our step. When we moved a take block or a takeoff point after a block, then we have to divide by the block value. So we move this line, these two lines at here. We just joined these here at point B. From, let's say this is a point A, from point A to point B, then these line will be like this. These line will be like this. Okay, so this line is not there now. We just moved this takeoff point at B, so we have to divide these takeoff point with the value of that block G4. So we have divide this S3 by G4, and there are two takeoff points, S3 and S2. So then S2 also we have to divide by G4. So S3 and S2 are divided by G4 here. Now what you can see that this G3, when this line is not there, it will be moved here. Then this G3 and G4 are in series, they can be multiplied, and they are forming a feedback with H4, so this circle is showing a feedback loop which is having a forward path gain, this one G3 and G3 into G4, and feedback path H4. So we will solve it like G3 G4 upon 1 plus GH. Now the value of G will be complete G3 and G4. 1 plus G3 G4 into H. H की value यहाँ पे है H4. So this will be the solution of this circle. Let's see. So these are in series. These will be multiplied. ये multiply हो गए. ठीक है. Let me clear all this. ये सर्किल को कंसीडर कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ से हटा के आगे मूव करा दिया, ये यहाँ पे आ गया है. ठीक है, ये यहाँ से हट गया. देन these G3 and G4 आर सीरीज, तो ये मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे आ गए.
अब ये G3 G4 H4 के साथ फीडबैक बना रहा है, ये इस तरह से जाता हुआ, ठीक है। तो इनको फीडबैक की तरह हमने सॉल्व कर दिया, जहां पे हमारी वही वैल्यू आ गई G3 G4 1 प्लस G3 G4 H4, ठीक है। देन दिस कंप्लीट ब्लॉक इज सीरीज विद G2, देन दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक विल बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। ये दोनों ब्लॉक मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी दिस G2 G3 G4 अपन 1 प्लस G3 G4 H4। तो आप ध्यान से देख लें, खाली कुछ नहीं किया है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक लिख दिया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ आ गए। अब अगेन ये वाला आप रेक्टेंगल देखे जो ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये वाला, ये अगेन एक फीडबैक बन रहा है, दिस विल अगेन मेकिंग ए फीडबैक लूप, जिसका फॉरवर्ड पाथ की गेन की जी की वैल्यू कंप्लीट ये है, दिस इज जी, एंड फीडबैक पाथ की वैल्यू ये है, दिस इज एच, दिस इज एच। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं g अपॉन 1 प्लस जी एस से। तो ये देखो, ये इस स्टेप में सेकंड जो ये पार्ट है, इसको यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमने सॉल्व किया हुआ है, ये पूरा सॉल्व हो किया आएगा। दिस कंप्लीट फीडबैक लूप विल गिव यू दिस ट्रांसफर दिस फंक्शन, नॉट ट्रांसफर फंक्शन, दिस फंक्शन। नाउ आप इसको भी देखें एक बार नीचे ध्यान से, उसमें थोड़ा यहाँ क्लियर नहीं है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। देखो इस वाले में ये इसी सेम पॉइंट से आके वैल्यू यहाँ पे जा रही है, अगेन ये H1 जो है ये भी यहाँ पे जा रहा है। सो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं, लेट मी ड्रॉ लाइक दिस, कि ये मेरा, अगर मैं कुछ इसको इस तरह से ड्रॉ करूं कि दिस इज माय H2 बाय G4, ठीक है। इस समर को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा रिवर्स करके बना दिया, दिस इज एडिंग, दिस इज सब्ट्रैक्टिंग, एंड सेम पॉइंट, इस पॉइंट से ये सेम पॉइंट से यहाँ पे H1 आ रहा है, इसकी भी डायरेक्शन इसी तरफ है, समर की तरफ ही है, ये आके यहाँ पे माइनस हो गए। तो दीज टू ब्लॉक्स आर इन पैरेलल, ये जो दो ब्लॉक हैं ये पैरेलल में हैं। तो इसको क्या कर लिख सकते हैं हम, दिस कैन बी रिटन एज H2 अपॉन G4 माइनस H1, माइनस H1। तो ये क्या हो रहे हैं, ये वाले जो दोनों ब्लॉक हैं, ये दोनों ब्लॉक यहाँ पे आके एड अप हो रहे हैं, ये है फीडबैक में, लेकिन ये फीडबैक में ही ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल में आ रहे हैं एक दूसरे के, इसकी इसको आप पहचानोगे कैसे, इनके एरोज जो है वो एक तरफ ही है, दीज आर एडिंग अप बाय दीज समर, ठीक है। जब आप फीडबैक क्लोज लूप से देखते हो तो उसमें एक एरो बाहर की तरफ होता है, इस तरह से करके वो कंप्लीट क्लोज लूप पास ऑन होता है। ये दीज आर नॉट फॉर्मिंग क्लोज लूप, दीज आर इन पैरेलल, बट ये रिवर्स में पैरेलल है बस, तो ये भी ऐड हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस दिया है, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है। तो दिस विल गिव यू H2 अपॉन G4 माइनस H1, G4 हमने कॉमन ले लिया, तो दिस विल गिव यू H2 माइनस G4 H1, ओके। तो दिस विल गिव यू H2 अपॉन G4 माइनस H1, हमने एलसीएम ले लिया, तो दिस विल गिव यू H2 माइनस G4 H1 अपॉन G4, ठीक है। मैं सब इरेज करता हूँ, तो आप ध्यान से देखें, एक क्लोज लूप हमने इसको सॉल्व किया है, दिस वन, दिस वन, देन एक हमने ये वाला ब्लू लाइन डॉटेड जो है ये सॉल्व किया है, दिस इज फॉर्मिंग ए पैरेलल, दीज ब्लॉक्स आर इन पैरेलल। तो इन दोनों को हमने एड अप कर दिया, अब ये नेगेटिव साइन है तो यानी वो माइनस हो गया है, तो दीज आर इन पैरेलल, तो दे कैन बी एड अप यूज विद देयर साइन, ठीक है। तो इस दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे इन दोनों वैल्यूज से जो हमने यहाँ पे निकाली है। नाउ योर, ये लाइन दिखाई नहीं है यहाँ पे, दिस इज एरो। सो अब ये क्या होगा, ये कंप्लीट एंड ये कंप्लीट यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, दिस H2 माइनस G4 H1 अपॉन G4 ये यहाँ पे आ गया, एंड दिस कंप्लीट G2 G3 G4 अपॉन दिस ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये दिस G1 इज अगेन आर सीरीज, इस सीरीज विद दिस ब्लॉक, जो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, तो इस G1 की हमने डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, सो दैट वी कैन रिड्यूस वन स्टेप। इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि यहाँ की मल्टीप्लिकेशन सीरीज में हो जाता है, तो यू नीड नॉट टू ड्रॉ ईच स्टेप, सो दैट योर न्यूमेरिकल विल बी हैविंग सम क्रिस्प इन इट,
इट्स मतलब यू नीड नॉट टू ड्रॉ एवरी स्मॉल सिंगल स्टेप। अगर आपको पता है कि ये वाली वैल्यू जो है इसको एडअप इसको आपको सॉल्व करके ये वैल्यू आ रही है, लेट मी क्लियर ऑल दिस। हमें पता है कि ये वाला जो सर्किल है इसको ये क्लोज लूप सॉल्व करके हमें ये आ रहा है और इसके साथ ये सीरीज में है, ठीक है। तो देन वी विल नॉट ड्रॉ अगेन कि हम इसको फिर से यहाँ पे लिखें फिर अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जो छोटे स्टेप है उसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे डायरेक्टली इस पूरे इसको सॉल्व किया, दिस वन इसको सॉल्व किया, देन इसकी वैल्यू को जी1 में मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, सो दैट वी कैन सेव एटलीस्ट वन स्टेप। ओके, now at last this this one and this one are in feedback loop। अगेन g की वैल्यू ये, h की वैल्यू ये, आप सॉल्व करेंगे g अपॉन 1 प्लस जी एस से, दिस विल गिव यू ए फाइनल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम दैट विल बी दिस इज योर फाइनल ट्रांसफर फंक्शन of this question। So anyone, any doubt in it? See, at least you have to do it by your hands or you have to practice it. At least I am not saying कि आप बहुत सारे क्वेश्चन करें, at least आप दो क्वेश्चन किसी को सॉल्व करके देखें। आप दो सॉल्व कर लोगे, you will solve all the questions। ठीक है, कैसे हो रहे हैं वो, you have to do the practice by your own। Okay, so this will be the final transfer function of this, you know, block diagram। Let's see another one। ये एक और एग्जांपल है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का। सो एनीवन कैन सजेस्ट कि हम कैसे इसमें सॉल्व कर सकते हैं? वेरी गुड। अगेन H1 को A से हम B पे ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ब्लॉक के आगे ले जा रहे हैं तो हमें G3 से डिवाइड करना होगा अगेन, तो ये H1 G3 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, हम इसको आगे ले गए G3 के यहाँ पे, तो ये H1 में G3 की डिवाइड हो गया। नाउ दिस G2 G3, ठीक है, ये G2 G3 जो है वो सीरीज में है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये दो फीडबैक लूप बना रहा है, ये G2 G3 एक S2 के साथ भी बना रहा है और एक इसके साथ भी बना रहा है। तो एक बार आपको इसके साथ सॉल्व करना होगा और एक बार आपको नीचे वाले के साथ सॉल्व करना। पहले ऊपर वाले के साथ सॉल्व करोगे तो आपकी लाइक दिस। राइट, अब आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। देखो कई सारे तरीके हैं। एक चीज ये देख लो आप, ये जो हमने टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे ये वाला जो लिया हुआ है, ये जाके इसमें भी जाके अटैच हो रहा है, देन इसमें भी जाके अटैच हो रहा है। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इनको अलग अलग कर दिया। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ इसे कि लेट्स सी आई से कि मैं यहाँ पे एक अलग H1 लिख के इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फीडबैक दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से, और ये लाइन हटा दी मैंने। देन एक H1 ये भी दे रहा हूँ मैं, ये वाला जो नॉर्मल बना हुआ दिस वन एक ये मैं H1 यहाँ से यहाँ तक भी ये वाला दे रहा हूँ। तो मैंने यही किया। इसको जब मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे, शिफ्ट करने के बाद मैंने इसको अलग अलग कर दिया कि एक तो H1 डिवाइड बाई G3 करके यहाँ है और एक H1 डिवाइड बाई G3 करके इस वाले इसमें जा रहा है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इसे चेंज कर दिया। तो अब जो ये कह रहे हैं बहुत अच्छी बात, एक बड़ी अच्छी टेक्निक है कि ये देखो, ये S2 और ये H1G3 ये दोनों यहीं पे आ रहे हैं, तो ये पैरेलल में हो रहे हैं बेसिकली। तो ये दोनों नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है यानी दोनों को आप माइनस में ऐड कर सकते हो। यू टेक द माइनस नेगेटिव साइन कॉमन, इट विल गिव यू H2 प्लस H1/G3। ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये वाला H1/G3 हो जाएगा, H1/G3, ठीक है। तो ये दोनों एडअप हो गए और ये इस G2 इंटू G3 के साथ क्लोज लूप बना लिया। तो आपकी H की वैल्यू, कंप्लीट H की वैल्यू ये हो जाएगी और फॉरवर्ड पाथ G की वैल्यू G2 इंटू G3 हो जाएगी। तो ये कंप्लीट क्लोज लूप एक ही बारी में सॉल्व हो जाएगा। तो ये कंप्लीट लूप, ये देखो इसमें यहाँ पे यही हमने किया हुआ है कि S2 और इसको, ये दोनों के एरो एक तरफ है तो ये दोनों पैरेलल में, यानी ये दोनों ऐड हो रहे हैं पीछे जाके। हमने इसको एक जगह कर दिया, ठीक है, दोनों को नेगेटिव कर दिया साइन, देन G2 इंटू G3 मल्टीप्लाई कर दी। अब ये हमारे फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू G और ये हमारे रिवर्स पाथ की वैल्यू है, सॉल्व कर देंगे, हमारा पूरा ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से हट के ये आ जाएगा। इस ब्लॉक का हमारा ट्रांसफर फंक्शन ये हो जाएगा इस पर्टिकुलर ब्लॉक का। अब इजी है,
G1 और ये अगेन हमारे सीरीज में है, तो G1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दिस G1 विल बी मल्टीप्लाई, G1 यहाँ पे आ जाएगा, ये इसके साथ एक फीडबैक लूप बना रहा है, ठीक है, तो G1 इंटू दिस और इसके साथ फीडबैक लूप हो जाएगा, तो ये कंप्लीट आपकी अगेन दोबारा से G की वैल्यू ये एंड फीडबैक पाथ की वैल्यू, दिस विल अगेन फॉर्मिंग ए फीडबैक लूप विद H1 बाई G3, फिर से सॉल्व करेंगे उसे, ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ एक एट लास्ट ये G4 जो है ये पैरेलल में ऐड हो रहा है इस कंप्लीट ब्लॉक के, ठीक है, ये जो G4 आपका बचा हुआ था ये ऐड हो रहा है इस कंप्लीट ब्लॉक के, तो लास्ट में हो जाएगा G4 प्लस योर कंप्लीट वैल्यू ऑफ दिस ब्लॉक, so this will be the transfer function of this particular question, ठीक है। हम्म तो ये दो तीन तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें आप अपने देख सकते हो कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं, कैसे इसमें आपको मूव कराना है टेक ऑफ पॉइंट को या फिर समिंग पॉइंट को, या फिर दो समिंग पॉइंट को हमने जो डिफरेंशिएट किया था, जैसे जो मैंने क्वेश्चन आपको घर में दिया था, ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमने क्या किया था, इस समिंग पॉइंट को ब्रेक किया था दो पार्ट में, तो ये कैसे हमने ब्रेक किया था, ठीक है, या फिर हमने टेक ऑफ पॉइंट को मूव कराया किसी क्वेश्चन में कि हमने जैसे ये इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ पे मूव कराया, तो ये कैसे कराना है, ब्लॉक के आगे कैसे कराना है, अगर दो ऐसे पैरेलल में है जो रिवर्स में भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसको भी हम पैरेलल में कंसीडर करेंगे, दोनों का एरो अगर एक तरफ है तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग देयर साइन, दिस इज कॉल्ड समर, बट दिस साइन इज इम्पोर्टेंट, अगर ये प्लस है तो ये प्लस साइन आएगा इसके आगे, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, तो इट इज एडिंग अप द थिंग्स इंक्लूडिंग द साइन, ठीक है। तो इस तरह से करके आपने ये तीन चार क्वेश्चन है जिसे आप देख सकते हो कि हाउ वी कैन सॉल्व द ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा, व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा, ठीक है। तो आई इंसिस्ट कि आप एटलीस्ट ये दो तीन क्वेश्चन कर लें, अपने से निकाल लें, एक तीन क्वेश्चन का मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, यू हैव टू सॉल्व और उसको सबमिट करें, ठीक है, और उसको आप खुद से सॉल्व करके सबमिट करें, नॉट लाइक दैट कि आपने बस सही आंसर उसमें टिक कर दिया और वो सही हो गया, आई रिक्वेस्ट कि आप उसको खुद से सॉल्व करें, ठीक है। तो एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस, so this is the end of this topic, block diagram algebra, so that in next class we will move it to the signal flow graph. There is another technique to solve the these block diagrams using signal flow graph. We convert these block diagram in signal flow graph, then we find the transformation of the system. That is a pretty conceptual and less can I can say it's consuming less amount of numerical part, but it is a pretty conceptual technique, signal flow graph. So anyone having any doubt?